Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for your upcoming examinations like CSIR, GATE and DBT. So this is the second part of CSIR December preparation series. I have already uploaded the part 1. I will provide the link of that video in the description box of this video so you can check out. एंड ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट कि जो पहले की प्लेलिस्ट है यू शुड वॉच इट बिकॉज इट हैज़ सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट टू डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक of cell biology, molecular biology, biochemistry, plant physiology. So you can check out that playlist because it will just boost up your preparation. So I will provide that playlist link also. So if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such content. So let's solve the first question. Basically, all these questions of today's video are for targeting the CSIR B section because in CSIR B section, straightforward questions are frequently asked, and if you know the answer, you can attempt it. Otherwise, it has negative marking. So try to just revise your factuals because for B section, you need it. So let's read the question. The first question is, which observation was made by Avery, MacLeod and McCarty? सो बेसिकली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इसको जानने के लिए आपको ये तीनों ही रिसर्चर्स का नाम पता होना चाहिए कि ये किस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है. इट मीन्स कि कोई भी आप अगर नाम पढ़ते हैं किसी भी रिसर्चर का, किसी भी साइंटिस्ट का, तो यू शुड नो अबाउट कि उनका जो भी एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है. सो बेसिकली ऑसवर्ल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलीन मैककार्टी, ये तीनों ही रिसर्चर they together work to determine the biochemical nature of the genetic material in गिरिफ्त experiment. यानी जो भी गिरिफ्त ने बताया था कि there is some transforming principle, उसका biochemical nature यानी एक्चुअल में वो transforming principle क्या था उसको इन्होंने रिवील आउट किया था. सो बेसिकली दे प्यूरिफाइड द प्रोटीन, DNA एंड RNA फ्रॉम द हीट किल्ड एस्ट सेल्स एंड इसके बाद इन्होंने फाइनल अपना कंक्लूजन दिया था जो कि आपको इन ऑप्शंस में से बताना है. DNA is a duplex molecule. DNA can be taken up from medium. DNA can denature at high temperature. DNA is more stable than RNA. So basically, according to the experiment performed by 3 of these researchers, they came to know that bacterial cells are capable of taking up the DNA which is present in the medium. So basically, this conclusion formed the basis of cloning plasmid in the bacterial cell. So the right answer for this question is DNA can be taken up from medium and also they reveal that DNA is the transforming principle यानी कि जो भी biochemical nature है उस transforming principle का, that is basically not RNA, not protein, it is only the DNA. Now next question, which of the following factors do not provide to the separation of DNA fragment during electrophoresis? Size, मैट्रिक्स डेंसिटी, चारगाफ्स रूल, इथीडियम ब्रोमाइड. सो इसमें अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते सो थ्रू द ऑड वन आउट ट्रिक यू विल बी एबल टू पिक आउट द आंसर. सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द DNA सेपरेशन ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस. सो साइज के बेसिस पे तो DNA सेपरेट होता ही है. अगर साइज बहुत बड़ा होगा DNA का तो वो स्लो मूव करेगा एंड अगर स्मॉल साइज होगा तो इट विल माइग्रेट फास्टर. ये तो इन्फ्लुएंस करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में. मैट्रिक्स डेंसिटी भी करता है यानी जेल का क्या परसेंटेज है, अग्रोज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना परसेंट आपने लिया है वो भी मैटर करता है, तो ये भी इन्फ्लुएंस करेगा यानी ये आंसर नहीं हो सकता. चारगाफ रूल भी करता है. पेयरिंग जो क्या है बेसिस के बीच में ये भी इन्फ्लुएंस करता है. इथीडियम ब्रोमाइड बेसिकली नहीं करता है बिकॉज इथीडियम ब्रोमाइड इज जस्ट फॉर स्टेनिंग पर्पज यानी आप उसे विजुअलाइज कर पाए उसलिए होता है. इथीडियम ब्रोमाइड हैज़ नो रोल बेसिकली इन द सेपरेशन ऑफ द DNA फ्रैगमेंट, इट इज़ जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इथीडियम ब्रोमाइड बिकॉज इथीडियम ब्रोमाइड ओनली हेल्प इन टैगिंग द DNA मॉलिक्यूल टू मेक इट मोर विजिबल एंड रेस्ट इसका कोई फंक्शन नहीं है सेपरेशन में. Now third question, which of the following is the slowest process among the following? Splicing, translation, transcription, replication. Basically this is a very basic question जिसे देख के आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत easy question है, but this is not so. अगर आपको नहीं पता है कि translation per second में
कितने अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं चेन में, ट्रांसक्रिप्शन में कितने आरएनए का सिंथेसिस होने जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो यू कांट गेस कि कौन सा प्रोसेस फास्टर पेस में होता है एंड कौन सा स्लो होता है। सो जो सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है अगर हम देखें हमारे सेलुलर प्रोसेसेस में से, सो दैट इज द ट्रांसलेशन, बिकॉज द स्पीड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो 200 to 1000 न्यूक्लियोटाइड होता है, अगर आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा तो, पर सेकेंड। बट इन ट्रांसलेशन the rate decreases so much that is only 2 to 20 amino acid per second. So slowest process क्या हो जाएगा? Translation. अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोसेस सबसे स्लोएस्ट है, so it is the translation only. Now next question, which of the following organism has been found to have a positively supercoiled DNA? So basically supercoiling क्या होता है? Supercoiling अगर मैं diagrammatically explain करूँ, so this is the रिलैक्स डीएनए। ये जो डीएनए है दैट इज द रिलैक्स डीएनए, एंड अगर ये सुपर कॉइलिंग होता है तो सुपर कॉइलिंग डीएनए कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस, दिस इज द सुपर कॉइल्ड डीएनए। सो बेसिकली सुपर कॉइलिंग क्या होता है? So supercoiling is the twisting of a DNA strand which determines the strain on the strand. अब ये जो supercoiling है वो क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन दी ट्विस्टिंग का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ट्विस्टिंग हो रहा है उस बेसिस पर जो हमारा supercoiling है दैट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। सो जो supercoiling पॉजिटिव तब होता है जब जो ट्विस्टिंग होता है वो सेम डायरेक्शन में हो डबल हेलिक्स के, एंड अगर जो ट्विस्टिंग है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है डबल हेलिक्स के, सो इट इज इन नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। सो बेसिकली जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग देखा गया है दैट इज सीन इन सम थर्मोफाइल्स, एंड इनमें से थर्मोफाइल्स कौन सा है? थर्मस एक्वेटिकस, जिससे टैग पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। सो बेसिकली द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड टू हैव पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए आर सर्टेन थर्मोफाइल्स इंक्लूडिंग द थर्मस एक्वेटिकस। Now next question, mark the statement which is incorrect about the transcription unit. It is a transcribed segment of a DNA. It is right, ये तो सही है, हमें incorrect पूछना है, यानी ये आंसर तो नहीं हो सकता। Eukaryotes have monocystronic transcription unit. So the statement is absolutely correct. Eukaryotic जो होते हैं वो monocystronic होते हैं। Basically what is this cystronic? So cystronic word came from the cystron, which is an old name for a gene. तो जो जीन है उसे सिस्ट्रॉन बोला जाता है। सो मोनोसिस्ट्रॉनिक मीन्स वन प्रोमोटर डायरेक्टली सिंथेसाइज दी वन आरएनए, सिंगल आरएनए सिंथेसाइज करेगा, एंड दैट सिंगल आरएनए विल यूजुअली ट्रांसलेट टू ओनली वन प्रोटीन। सो बेसिकली जो यूकैरियोटिक स्पीशीज होते हैं वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, एंड जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक यानी कि एक प्रमोटर डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ वन एमआरएनए, और वो जो वन एमआरएनए है दैट कैन बी ट्रांसलेटेड टू मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यानी एक प्रमोटर एक एमआरएनए बनाएगा बट वो एक एमआरएनए मल्टीपल प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है वो रेगुलेट करेगा। सो दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एंड जब एक एमआरएनए बना है एक प्रमोटर से तो दैट एक mRNA will synthesize only one protein, that is known as monocistronic. तो monocistronic is seen in eukaryotes and polycistronic is seen in prokaryotes. So जो prokaryotes हैं वो क्या होते हैं? Polycistronic, but C में क्या दिया है? Prokaryotes also have a monocistronic transcription unit. This is wrong, यानी कि ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन क्या है? इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, बिकॉज द प्रोकैरियोट्स आर polycistronic and the eukaryotes are monocistronic. Now next question, name the repair system for UV mediated damage of DNA. Is it exchange of homologous segment, DNA glycosylase, nucleotide excision repair, or photoreactivation? So you have to remember this is a very factual and very basic question regarding the DNA damage wala part. So for UV mediated DNA damage recovery, photoreactivation is the process, यानी photoreactivation से UV DNA damage को ठीक किया जाता है। To reseal the DNA backbone, where does topoisomerase get the energy from? So basically, topoisomerases are enzymes that maintain the topological state of a chromosome by regulating the DNA supercoiling. अभी हमने देखा positive supercoiling और negative supercoiling. So
इट रेगुलेट्स द डीएनए सुपरकॉइलिंग एंड अनलिंक द टैंगल्ड डीएनए स्ट्रैंड। जो भी डीएनए एंटैंगल हो जाते हैं उनका ये रेगुलेट कैसे करता है, उनको रिलैक्स कैसे कराता है, डीएनए सुपरकॉइलिंग करके। सो बेसिकली टोपोआइसोमरेजेस आर एंजाइम्स दैट मेंटेन द टोपोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ डीएनए। सो उन लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, टू रीसील द डीएनए बैकबोन। जो टोपोआइसोमरेज है, सो बेसिकली टोपोआइसोमरेज reseal the DNA backbone by draining the energy from the phosphodiester cleavage। phosphodiester cleavage से ये क्या करता है, एनर्जी डिराइव करता है जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए, डीएनए को रीसील करने के लिए। नाउ जो फॉस्फोटायरोसिन लिंकेज है दैट कंजर्व्स द एनर्जी इन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दैट वाज क्लीव। देयरफॉर जो डीएनए है वो रीसील होता है इस कंडीशन को रिवर्स करके। ये कैसे होता है ये प्रोसेस, जो फॉस्फोटायरोसिन लिंकेज है दैट कंजर्व्स द एनर्जी इन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दैट वाज क्लीव्ड। तो अगर हमें रीसील करना है तो वी नीड अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी डीएनए को सील करने के लिए, गैप्स को सील करने के लिए व्हाट डू वी नीड, वी नीड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, दैट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम वन ब्रोकन डीएनए which attacks the phosphotyrosin to reseal the DNA through DNA phosphodiester bond। यानी एक ब्रोकन का OH एंड दूसरे का फॉस्फेट, ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं phosphodiester bond। So this is how the DNA reseals। So the correct answer for this question is option C। So this is all for today। I hope you liked it। and अगर आपको कोई particular video चाहिए do comment below। I'm also planning कि unit wise मैं questions लेके आऊँ so that it will be easy for you। So if you like my efforts, hit the like button and thank you so much for watching।